चलो आज today we are going to discuss about the different aspects of practical aspects with respect to the condensed and evaporated milk. So we have already discussed that before taking into the milk into for consideration for making condensed milk or evaporated milk, some specific test is actually required, which are going to discuss today. Number one test, which is also known very common, we have already discussed in theory class also, that number one is to check the acidity of the milk for the manufacture of for onward transmission of processing for condensed milk and dried milk. तो मैंने बताया था कि जिस तरह से हम लोग मिल्क के लिए प्लेटफॉर्म टेस्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म टेस्ट क्या है? Those tests which are actually conducted on the platform for quick acceptance or rejections of milk on the basis of their quality. So quick tests are actually similarly the same platform test is also applied for the milk which are going to be used for the manufacture of condensed milk, evaporated milk. The number one is clot on boiling test, जिसको हम लोग कहते हैं COB test. It is also applied for the fluid milk for processing of milk for conversion into different dairy products also. और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, COB test है सो हम लोग करते हैं. तो we have already you have already done this test. This is actually used for quick acceptance or rejections of milk. If there is any developed acidity, then the milk is discarded and that is not mixed with the fresh milk or the natural milk. So if there is any developed acidity, that means the milk is not able to undergo the severe heat treatment, particularly evaporated milk. And the difference between, because in case of when we going to manufacture of evaporated milk, definitely we will go for the milk is undergo with the higher heat treatment. So there may be chances of coagulation. So huge money will be lost due to the spoilage or coagulation of milk during the processing or during the conversion of milk into the condensed milk or evaporated milk. Particularly in evaporated milk, because milk is subjected to high heat treatment, that is why the milk is assessed before processing into evaporated milk. तो COB टेस्ट है, उसको हम लोग करते हैं. इसके बाद तुम लोग बताओ COB टेस्ट कैसे करते हैं? हाँ, तुम लोग किए हो ना COB टेस्ट? बताओ, मिल्क में किए हो ना, तो बताइए. हाँ, प्रतीक्षा बताओ, प्रणव कौन बताएगा? प्रसन्नजीत? हाँ, any one of your class, please tell me about COB test. How it is performed for liquid milk? अरे यार, market milk is already a study. Yes, sir. Hello, sir. Open your video. Sir, light नहीं है sir घर में. चलो बताओ. Sir, in COB test we take 10 ml of milk in a test tube and then we heat milk for 2 to 3 minutes. If there is a coagulation in the milk, then we consider it as a positive test and the milk is rejected. Okay. Why milk is coagulated? Sir, sir, due to acidity, sir.
the milk becomes sour and gets coagulated. So what is the level of acidity during that time? Sir, about 0.2 to 0.3%. 0.22 to when the acidity of milk, when the acidity of milk increases by 0.2%, then milk becomes curdled, है ना। तो अगर हमें कंडेंस मिल्क भी बनाना है और इवोपरेटेड मिल्क बनाना है तो भी हमको है सो इस टेस्ट से, सबसे आसान टेस्ट है प्लेटफॉर्म टेस्ट का, इसलिए हम इसको है सो करते हैं। और ताकि हम मिल्क को आगे, जनरली तुम देखोगे जो बिहार में जितनी डेयरियां हैं, सो स्टिल दे आर एक्चुअली assessing the milk on the basis of COB test, even used for making powder, milk powder or condensed milk. Now comes into the how suppose we are not able to judge suppose if there is another materials which may also on the basis of organoleptic also you are actually screen the milk। लेकिन क्या है कि इसके बाद हम लोग फर्दर और हीट स्टेबल देखना है, इवोपरेटेड मिल्क के लिए देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल टेस्ट है सो हम लोग अल्कोहल टेस्ट और अल्कोहल इंडेक्स टेस्ट की ओर जाएंगे। एवरीवन मस्ट ओपन देयर वीडियो नाउ, नॉट प्लीज ओपन योर वीडियो। पता नहीं क्यों तुम लोग बंद कर देते हो, हम तो अपना बंद नहीं कर रहे, हम तो पानी पी रहे थे। ठीक है, तो कैसे करते हैं अल्कोहल टेस्ट? अल्कोहल टेस्ट में भी हमने जैसे कल भी बताया था कि कैसे क्या होता है कि अल्कोहल टेस्ट में हमने सिंपल जो बताया तुमने, जैसे जिस तरह से हम लोग सीओबी करते हैं सेम प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग मिल्क, देन वी आर एडिंग क्या कहता है, उसके पहले तुमको क्या करना है, 5 ml या 10 ml जो भी मिल्क लेना है उतना ही क्वांटिटी का सेम अमाउंट हम लोग है सो लेंगे अल्कोहल का। अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना होगा, है ना, कंसंट्रेशन कितना होगा अल्कोहल का, 68%। कितना होगा, 68% अल्कोहल का हम लोग है सो सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसमें है सो मिलाते हैं। इफ देयर इज एनी फ्लैक्स फॉर्मेशन देन वी कैन गो फॉर, है ना, देन इट मींस इंडिकेट दैट alcohol is positive, so milk is not suitable for making evaporated milk or condensed milk, है ना। इस तरह से हम लोग है सो अल्कोहल टेस्ट करते हैं। इसमें ऑलरेडी तुमको बताया कि कोनिकल फ्लास्क लेना है, कोनिकल फ्लास्क में 10 ml मिल्क लेना है और ब्यूरेट से, ब्यूरेट देखे हो तो क्लास में, वो ब्यूरेट से फिर हम लोग 1 by 1 स्लाइटली वी आर एक्चुअली उसमें डालेंगे, है ना। उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल डाल करके देख लेंगे। उसके बाद जैसे ही अगर किसी तरह का फ्लैक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ तो समझो कि दूध इज मिल्क इज सुटेबल फॉर condensed milk also and also for evaporated milk. Now another test which are also generally conducted in most of the other dairy plants, not in Bihar, but these tests are also recommended for accepting or rejecting the milk for the manufacture of condensed milk or evaporated milk, that is alcohol index test. alcohol index test क्या है, इसमें हम मतलब अब्सोल्यूट अल्कोहल लगभग 100% जो शुद्ध अल्कोहल है उसको यूज करते हैं इसमें। तो जनरली जो हमको दूध एक्सेप्ट करना है, मिल्क इज एक्सेप्टेड, उसी दूध को एक्सेप्ट करेंगे जिसका अल्कोहल इंडेक्स 7 आएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, 10 ml दूध लेते हैं और 10 ml दूध लेने के बाद उसको है सो उसमें धीरे धीरे करके डालते हैं। तो 1 ml लगा, 2 ml लगा, 3 ml लगा, अगर 4 ml में अगर हमारा कोगुलेट कर गया तो अल्कोहल इंडेक्स इज 4। इफ 5 ml of milk, 5 ml of absolute alcohol required to coagulate the milk, that means alcohol index is 5। उसी तरह से अगर 6 अगर हम लोग को 6 ml अगर लग गया तो समझो कि अल्कोहल इंडेक्स हमारा 6 हो गया। लेकिन हमको एक्सेप्ट कितना चाहिए, हमको अल्कोहल इंडेक्स 7। अगर हमारा अल्कोहल इंडेक्स 7 होगा देन मिल्क इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोसेस फॉर कंडेंस्ड मिल्क
evaporated milk, or even for different type of milk powder. So here we can understand that in case of milk, when go with the alcohol index test, then the alcohol index must be 7, और उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है कि 7 तो हमको चाहिए. If there is a less than 7, there is a 6 or 5, there may always a chance to coagulate during the processing of milk, or even they may chop in for conversion into powder. So there is a huge loss of the industry. So that is why it is recommended that before making the milk into the powder, these tests must be conducted at platform. And similarly, you can also assessing the acidity test. जैसे हम दूध का टेस्ट करते हैं, उसी तरह से हम इस दूध को भी एसिडिटी टेस्ट कर सकते हैं. तो एसिडिटी टेस्ट तो ऑलरेडी तुम लोग किए हो. तो उसमें भी क्या है, 10 ml मिल्क लेना है और उसको हम 100 ml कोनिकल फ्लास्क में दूध ले लिए. उसके बाद हम NY10OH का सोल्यूशन बनाते हैं. कैसे बनाते हैं जो बताया भी था. NY10NOH का सोल्यूशन बना लेना है और उसके बाद उसको ड्रॉप बाय उसमें फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर 3 से 4 ड्रॉप डालना है. 3-4 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालने के बाद जैसे ही हमारा जब हम डालते जाएंगे बूंद बाय बूंद ब्यूरेट से, तो जैसे ही हमारा स्लाइट पिंक कलर आएगा, यू कैन स्टॉप द टाइट्रेशन. उसके बाद उसको नोट करना हो व्हाट इज द वॉल्यूम यूज्ड, और उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम यूज जितना हो उसके बाद 9VN/W जो फॉर्मूला है 9VN/10, उसका जो है उससे हम निकाल लेते हैं परसेंटेज एसिडिटी इन टर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड. तो हमने बताया अभी कि जैसे 0. हमारा जो दूध का नॉर्मल एसिडिटी कितना होता है, हमारा दूध का नॉर्मल एसिडिटी कितना होता है, जो 0.13 से लेके 0.14. अगर बफेलो मिल्क है तो 0.15 से लेके 0.16 हो सकता है. लेकिन जैसी 0.18 तक मान लो करोगे गर्म तो नहीं हो सकता फटे. लेकिन जैसी हमारा दूध का एसिडिटी इन टर्म्स ऑफ लैक्टिक 0.2 से ज्यादा होता है, विल बिकम्स कर्डल. जैसे तुम जाओगे तो कर्डल हो जाएगा. लेकिन इससे मतलब हमारा वो नहीं है. कभी कभी तुम देखते होगे घर में दूध आया और जस्ट जैसे ही तुम किए विदाउट एनी डेवलप एसिडिटी मिल्क बिकम्स कर्डल. सो दैट इज नॉट नेचुरल कर्डलिंग. That is called sweet curdling. That is generally done by anaerobic bacteria, Bacillus cereus, Bacillus subtilis. This group of bacteria actually responsible because they are releasing one enzymes, that is renin-like enzymes that actually coagulate that actually act on protein and make a small particles and they coagulate the milk. तो वो अलग चीज है. जनरली वो मस्टैटिस मिल्क में आता है, या तुम्हारा दूध किसी भी सोर्स पे कंटामिनेट हो गया तब आता है. तो इस तरह से वो अलग चीज है. लेकिन हमारा दूध जैसे ही 0.2 एसिडिटी इन टर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा, द मिल्क बिकम्स कर्डल. So that is why we can suppose if you have any confusion, you can also send the sample into the laboratory quality control test for assessing the acidity of milk, which is going to be used for the manufacture of sweetened condensed milk or condensed milk. Alcohol index test already बता चुका कि कैसे हम लोग ऐसा alcohol index test करेंगे. और हम लोग जब भी ये चीज का ध्यान रखना है कि जो हम अल्कोहल टेस्ट करेंगे उसमें अल्कोहल का जो स्ट्रेंथ होगा वो 68% होना चाहिए. तो उसको भी बनाने के लिए जो है सॉल्यूशन जैसे बनाते हैं, जैसे NY10 का बनाए थे, उसी तरह से हमको सब सॉल्यूशन बनाना है, तब हम जाकर कुछ यूज करेंगे. जनरली केमिस्ट्री में तुम्हें ये सब सॉल्यूशन बनाने के लिए बताया भी गया होगा. तो इस तरह से हम लोग ये तीनों टेस्ट करते हैं. इसके बाद हम ये पूछना चाहेंगे तुमसे कि एसिडिटी जो होता है दूध में वो किसके चलते होता है? हाँ प्रसन्नजीत बताओ. लैक्टिक एसिड के चलते सर. लैक्टिक एसिड के चलते. वो तो डेवलप एसिडिटी हुआ. नेचुरल एसिडिटी किसके चलते होता है दूध में? नेचुरल पता नहीं. अरे ऐसे बताओगे तो फिर बड़ा दुख की बात है कि इवन हम तो ये बाय चांस पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें 40 मिनट्स का टाइम देता है, और टू बी टेस्ट वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म, और इफ सम वीडियो इज आई विल फाइंड फ्रॉम गूगल देन आई विल सेंड टू यू. तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि तुम्हें
डेवलप एसिडिटी और नेचुरल एसिडिटी पता है? इलेक्ट्रोफोकस सर कुछ हाँ, इलेक्ट्रोफोकस बताओ। पीरियड चलता है क्या? इलेक्ट्रोफोकस अरे वो तो डेवलप एसिडिटी की बात कर रहा हूँ, व्हेन लैक्टोज इज इलेक्ट्रिकली कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय सम बैक्टीरियल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, वो डेवलप एसिडिटी हो। बट नेचुरल एसिडिटी, दूध में जो एसिडिटी होता है, व्हाई buffalo milk contains higher concentration of lactic acid in comparison to cow? और तुमको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो दूध है, cow milk is only suitable for manufacture of sweetened condensed milk, evaporated milk or even dried milk product. But because buffalo milk is actually not able to tolerate the severe heat treatment which is going to be given for manufacture of evaporated milk or dried milk product. So we are actually developing a technology for manufacture of these product from the buffalo milk. और 1965 में सबसे पहला जो है हमारा आनंद में तो बफेलो मिल्क से पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो ये तुम सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है कि ऐसा सच हम यूज कर लेंगे दूध को किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। सब दूध की अलग अलग खासियत है ना। इफ यू आर मेकिंग इवन कंडेंस मिल्क from condensed milk or evaporated milk from buffalo milk, so definitely you have to modify the technology for the manufacture of condensed milk or evaporated milk. Otherwise you are not able to get the product as we find from cow milk. समझे? उसी तरह से किसी भी चीज वगैरह भी है जो काउ मिल्क से दूध का चीज हो सकता है, तो बाद में चीज की क्लासेस में बताया जाएगा। लेकिन जो इसमें हम बता रहे हैं कि ये, अब बताओ नेचुरल एसिडिटी क्यों होता है? प्रतीक्षा, हैव यू हियर माय वॉइस? लास्ट टाइम ही तुमने जवाब दिया था, बताओ। फॉस्फेट प्रेजेंट होता है मिल्क में और साइट्रेट प्रेजेंट होता है मिल्क में, इसी कारण होता हाँ है। ठीक है, कुछ तो बताया, और बताओ। Yes. हाँ, कौन बताए थे? व्हाट इज योर नेम? शिवम सर। हाँ, वो तुम्हारा प्रणव बताया। अरे फॉस्फेट साइट्रेट्स किसने बताया? शिवम सर, शिवम। शिवम। हाँ, Yes, और sir. भी जोड़ो इसमें। हाँ Sir, dissolve CO2 during the process of milking and thereafter. चलो ठीक है, थोड़ा सा ये भी कंट्रीब्यूट करता है एसिडिटी के लिए। और कल मैंने Yes, बताया sir. भी था कि CO2 चूंकि फोम फॉर्मेशन करता है, अगर सावर क्रीम है तो क्या होगा? सावर क्रीम में ज्यादा है सो CO2 होता है, तो वो क्या करता है कि एसिडिटी तो प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, लेकिन क्या है कि वो टेक पार्ट नहीं करता है, वो जो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम करते हैं। So there may be chances of over neutralization. So we have to take the consideration of the presence of CO2. और बताओ। अरे यार, इतना सिंपल चीज नहीं बताओगे तो फिर तो होगा कि सब कोर्स पढ़ लिए हो और ये सब भी बेसिक चीज नहीं आता है। जो नेचुरल एसिडिटी प्रतीक्षा हो, तुम बताओगी? नहीं हो प्रेजेंट? अच्छा, ये नंदन है, क्या नाम है? सेमैया नंदन। देखो, नेचुरल एसिडिटी जो होता है वो किसके चलते होता है? केजीन के चलते होता है। जैसे उसने बताया फास्फेट, साइट्रेट्स, लैक्टोज का भी कुछ पार्ट होता है। फिर उसके बाद मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स में ही आगे फास्फेट, साइट्रेट्स और जो मिनरल्स, ये सब की वजह से ये नेचुरल एसिडिटी कहते हैं, नेचुरल एसिडिटी होता है। लेकिन वही जब बैक्टीरिया का सबसे पहले क्या तुमको दूध में मार्केट में पढ़ाए थे कि एज सच मिल्क इज ड्रॉन फ्रॉम द अडर ऑफ द काउ, सम एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स, जैसे मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोबिन है ना, लैक्टोपेरोक्सिडेज, लाइसोजाइल, लैक्टोफेरिन, है ना, दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर एक्चुअली लैक्टिन 1, लैक्टिन 2, ये सब कंपाउंड्स है व्हिच एक्चुअली रेसिस्ट द चेंज इन पीएच और एसिडिटी। तो क्या होता है कि हमको जब मिलाना होता है, हाँ, जब हमको दूध में जैसी
जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये सब जो है एक्टिविटी इसकी कम जाती है, और उसके बाद हमारा सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का बैक्टीरिया डेवलप करता है। उसके बाद सर्टेन एसिडिटी के बाद वो मर जाता है, फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डेवलप करता है, फिर वो भी मर जाता है, फिर एसिडिटी ज्यादा हो जाता है, पीएच लो हो जाता है, तो फिर ईस्ट एंड मोल्ड ग्रो करता है। देन ईस्ट एंड मोल्ड जब ग्रो करता है, दे आर रिलीजेस प्रोटीजेस लैपेजेस एंजाइम्स व्हिच एक्चुअली स्पाइलेस द मीट। जो बहुत गंध आता है, दुर्गंध आता है, वो देखते हो सड़े हुए दूध से। तो these are due to the growth of yeast and mold, and they are actually releasing high heat resistant microbial proteases and lipases which are actually not even destroyed at higher pasteurization. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो नेचुरल एसिडिटी होता है वो हमारा फास्फेट, मुख्य रूप से केजीन, लैक्टोज, फिर मिनरल्स, फास्फेट, साइट्रेट्स और ये सब के चलते होता है। और डेवलप एसिडिटी होता है लैक्टोज, जब हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय मींस ऑफ जो बैक्टीरिया। उसमें भी मैंने बताया कि सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का बैक्टीरिया डेवलप करता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डेवलप करता है। जैसे ही एसिडिटी ज्यादा होता है वो द स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज मरने लगता है। उसके बाद हमारा लैक्टोबैसिलस ग्रुप का डेवलप करता है, फिर वो मरता है। फिर एसिडिटी ज्यादा जब हो जाता है, लो पीएच हो जाता है, तो लो पीएच पे क्या डेवलप करता है, ईस्टर्न मोल्ड। ईस्टर्न मोल्ड जैसे डेवलप किया तो दे आर रिलीजिंग प्रोटीजेस, लैपेजेस, एंजाइम्स एंड दे आर एक्चुअली एक्ट ऑन द प्रोटीन फैट। जो लैपेज है वो फैट पे एक्ट किया तो रेंसिडिटी हुआ, बहुत सारा डिफेक्ट डेवलप किया। उसी तरह से प्रोटीन पे एक्ट किया प्रोटीएज, और वो बहुत सारा प्यूरिड फ्लेवर और बहुत सारा अनडिजायरेबल फ्लेवर ऐसे डेवलप करता है। तो दीज आर द एस्पेक्ट वी हैव टू डिस्कस टुडे। और इसमें किसी को कुछ पूछना है बताओ, और हम ऐसो इसको पूरी तरह से इसको कॉपी में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको लिख लेना है। और बताओ इसमें कुछ पूछना है कि हम आगे बढ़े, कुछ पूछना है जी? अमरजीत, अमरजीत बहुत ठंड लग रही है, आवाज आ रही है? प्रणव? नो सर। हाँ प्रणव बताओ, अल्कोहल इंडेक्स कितना होना चाहिए अगर हमको कंडेंस मिल्क और और ड्राइड मिल्क या प्रिफर्ड मिल्क बनाना है तो? हाँ कितना होना चाहिए अमरजीत? हाँ कितना होना चाहिए अल्कोहल इंडेक्स? हाँ बताओ। आई हैव रिपीटिंग 1 2 times 3 times। क्या हुआ? ठीक है, इसको तुम लोग सब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको लिख लोगे, और अच्छे से इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन फिर से होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसके बाद जो मैंने तुम्हें वैक्यूम पैन के बारे में जो डिटेल्स बताया था उसको भी कर लोगे, उसको भी भेज दिया हूँ तुम लोग के। और कुछ पूछना है? प्रसन्नजीत नहीं आया? कितना होता है होना चाहिए 7 सर। हाँ वेरी गुड, 7। हाँ ठीक। तो आज 15 लड़के आए हो केवल। और अमरजीत जब मन करता है वीडियो हटा लेते हो? यस सर। हाँ तुम बताओ। नहीं सर, नेटवर्क इशू है सर, मौसम खराब है, अच्छा, चलो ये सब तो आते रहेगा। और बाहर आना पड़ा सर घर से। मौसम खराब है इस वजह से सर, नेटवर्क इशू पता नहीं। ठीक है चलो चलो। तो और कुछ पूछना है तुम लोग को? हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो सर। नो सर। हाँ तो इसको सभी को चीजों को बारीकी से अपने नोटबुक में लिख लेना। और जो असाइनमेंट है, नेक्स्ट जो असाइनमेंट है कंडेंस मिल्क का,
उसको जो है तुम लोग कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क बाय फ्रीज ड्राइंग जो है उसको तुम लोग है सो असाइनमेंट के रूप में लिख लोगे, दूसरा असाइनमेंट इस टॉपिक का। ठीक है, इसमें जो टाइम देता है लिमिट 40 मिनट्स, ये बस 8 मिनट बचा है केवल। तो ठीक है, इसी किसी को कोई क्वेरी नहीं है नो सर, थैंक यू सर। तो क्विट करते हैं। थैंक यू ओके, सर। ठीक है, Thank you, sir. हाँ ठीक है। थैंक यू सर। हम्म